Good morning, students. Today we are going to start the next topic, that is oxygen dissociation curve. Oxygen dissociation curve is plot between the saturation of hemoglobin with oxygen and the partial pressure of oxygen in blood. This is the curve of hemoglobin, in which we represent the percentage saturation of hemoglobin at the y-axis and the partial pressure of O2 in the blood at the different levels on the x-axis. When we plot this graph, that is oxygen dissociation curve, we see that at 20 partial pressure of oxygen, the saturation percentage of hemoglobin is 30%. At the 40, it is 75 or 73 or 72%. And at the 95 partial pressure of oxygen, it is at 95% or 97% saturated. The 97% saturation indicates that only 3% of oxygen is carried out by the plasma, and most of the oxygen यानी कि 97% is carried out by the hemoglobin as oxyhemoglobin. This curve reads and tells about at the partial pressure of oxygen in blood, that is 20 milligram of mercury, then it is saturation of hemoglobin would be 30%, and it found at the tissue level, and 40 partial pressure when the found in the blood at the deoxygenated blood and venous blood, then it contains 75% saturation of hemoglobin. In deoxygenated blood contains 75% saturation of hemoglobin, and oxygenated blood, when the partial pressure of oxygen is 95, the saturation of hemoglobin percentage is 97. This is the graph which tells about the percentage of hemoglobin saturation. And when this oxygenated blood because this oxygenated blood or oxygen hemoglobin is a temporary complex, and it dissociate which depends on some factor, and this oxyhemoglobin release the oxygen gas and hemoglobin as it is. So what are their factors which affect the dissociation of oxyhemoglobin? First is the carbon dioxide concentration in blood, and you can say partial pressure of carbon dioxide. When the partial pressure of carbon dioxide or the concentration of carbon dioxide increases, the oxygen dissociation curve bends towards the right. That means, what is the meaning of a graph is bends towards the right? That is the meaning of the oxyhemoglobin complex is going to be dissociate. That means more the carbon dioxide percentage or more the partial pressure of carbon dioxide, less the oxyhemoglobin formation. That means the dissociation of oxyhemoglobin increases. This is called the Bohr's effect, and it is very important for the examination. Next factor, that is temperature, and this temperature plays an important role to dissociate the oxyhemoglobin into oxygen and the hemoglobin. When the temperature increases, then ODC, that means oxygen dissociation curve, also bends towards the right. That means the increase in temperature, breakdown of oxyhemoglobin is more. And what about the pH value? When the pH value decreases, that means the acidity increases. pH value decreases, the acidity increases. When the acidity increases, then oxygen dissociation curve bend also
towards right. And when pH decreases or acidity increases, the breakdown of hemoglobin increases. This is all about of oxygen dissociation curve, and it is very important for next examination. And now what is the what about the release of carbon dioxide? Firstly, we have to understand what is the topic. Actually, we are discussing the oxygen which is carried out by three steps, by the three method, by the plasma as carbonic acid, and by the carboamino hemoglobin which is 70%, and next 23% that is carb amino hemoglobin, and 70% by the bicarbonates of bicarbonates of potassium and nitrogen sodium. We have discussed this all about in previous video. Now what is the topic? Says that because the all compounds which are formed in this transportation all are temporary, and they have to be dissociate at different PO2 or different levels of the body. But when they dissociate, when the carb amino hemoglobin dissociate, what is the rate and what factors behind this? So firstly we have to discuss the Haldane effect. What is the Haldane effect, or what it says? That when more and more oxyhemoglobin is formed, that means when the oxyhemoglobin percentage becomes high in our blood, it is responsible for release of कार्बन डाइऑक्साइड. तो क्या होगा? जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बॉडी के अंदर चलेगा तो क्या होगा? टिश्यू लेवल पे जाते ही वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो कि ज़्यादा होगी, और जो CO2 लेवल होगा टिश्यू में वो कम होगा. तो ये सब क्या है? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करने वाले प्रोसेस हैं. तो यहाँ पर क्या होगा? ब्लड में से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट होने के बाद ऑक्सीजन जो है निकल करके बाहर निकल जाएगी. तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्ट एज, तो ये होता कैसे? डिसोसिएशन कैसे होगा? जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड. तो इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड बिकॉज इट रिलीजेस हाइड्रोजन आयन, एंड व्हेन द ऑक्सी hemoglobin formation occurs, the hydrogen ion is formed. These hydrogen ions combines with the bicarbonate ions which are present in plasma already, and hydrogen ion when combines with hydrogen carbonate ion they form carbonic acid, which are carbonic acid which is carried out by the plasma. And this carbonic acid, when the partial pressure of carbon dioxide increases and the partial pressure of oxygen decreases, this carbonic acid dissociate into water and the carbon dioxide molecule, and this is the enzymatic reaction in which same enzyme works like which is carbonic anhydrase enzyme, which is the responsible for carbonic acid formation. This is also responsible for dissociation of carbonic acid. And next is when the high partial pressure of oxygen occurs in blood, they cause dissociation of carb amino hemoglobin, by which 23% of carbon dioxide is transported. So this carb amino hemoglobin dissociate at the pressure of high partial pressure of oxygen into carbon dioxide and hemoglobin. And next and the most important, that is dissociation of KCl, because in RBC and NaHCO3, that means सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन प्लाज्मा. तो क्या होता है कि जो KCl है उसका डिसोसिएशन RBC में, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का डिसोसिएशन प्लाज्मा में होता है. तो अब वही क्लोराइड शिफ्ट वाला प्रोसेस जो है वो कहाँ से आए थे? क्लोराइड शिफ्टिंग कैसे हुई थी? तो जो KCl है इज डिसोशिएट इनटू RBC एंड फॉर्म पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट dissociate into sodium and hydrogen carbonate ion into the plasma, and the chloride ion exchange with the hydrogen carbonate ion.
which is we have studied in the chloride shift Hamburger effect. And this hydrogen carbonate, which is now in plasma, and when the partial pressure of oxygen increases, then this hydrogen carbonate react with hydrogen ion and form carbonic acid, and this carbonic acid dissociate with the help of carbonic anhydrase, and carbon dioxide and water is released. This carbon dioxide is exhaled by the alveoli. This is the all about of the releasing of carbon dioxide and oxygen. Now what next topic is control of respiration. कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, ये टॉपिक है कि हमारी बॉडी को रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल करता है, क्योंकि मसल्स हैं, मसल्स इन्वॉल्व हैं पूरे रेस्पिरेशन में, तो कितना इंस्पिरेशन में कौन सी मसल्स यूज़ होनी है, कब होनी है, कब एक्सपिरेशन होना चाहिए। तो इस तरह को इस टॉपिक का मतलब है कि हमारी बॉडी कैसे इस प्रोसेस को कंट्रोल करती है। तो रेस्पिरेशन इज़ कंट्रोल बाय द 2 वेज। पहला नर्वस कंट्रोल, यानी कि इसमें ब्रेन का जो है इन्वॉल्वमेंट रहेगी, और दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल, जिसमें जो है केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे। तो नर्वस कंट्रोल का मतलब क्या है, इसमें 3 कंट्रोल साइट सेंटर्स होते हैं, जो जिसको हम रिदमिसिटी सेंटर भी बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी रिदमिसिटी सेंटर। तो ये 3 सेंटर क्या हैं, इंस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर, एक्सपिरेटरी कंट्रोल सेंटर एंड न्यूमोटैक्सिक कंट्रोल सेंटर। तो इंस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर ये कहाँ मिलेगा, ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो पार्ट होता है, बट डोर्सल साइड पर, तो ये मिलेगा आपको डोर्सल साइड पर मेडुला ऑब्लोंगेटा के। तो यहाँ वहाँ पर ये सेंटर होता है। तो ये करता क्या है, ये कंट्रोल करता है आपका नॉर्मल इंस्पायरेशन, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जो आप नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे हो उसको कंट्रोल करता है। तो ये कैसे वर्क करता है, तो जो इंस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर है, तो ये इंस्पिरेटरी मसल्स हैं जो हम लोगों ने पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ी हैं। इंटरकोस्टल मसल्स हम लोगों ने पढ़ी थी, और न्यूमैटिक मसल्स भी हम लोगों ने पढ़ी थी। तो वे जो मसल्स हैं, तो उनको एक सिग्नल यानी मैसेज जाता है जिसका नाम है रैम्प सिग्नल। तो थ्रू दिस सिग्नल दिस इंस्पिरेटरी मसल्स बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन अकर्स, बट दिस इज़ फॉर ओनली 2 सेकेंड, बिकॉज जो नॉर्मल साइकिल है रेस्पिरेशन की, इट इज़ ऑफ अबाउट 5 सेकेंड, in which 2 seconds for inspiration and 3 seconds for expiration और exhalation। तो ये रहेगा हमारा 2 सेकेंड के लिए, और ये एक तरह का एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें एनर्जी भी यूज़ होएगी, सिग्नल भी जाएगा। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल जो एक्सपिरेशन होता है, एक्सपिरेशन, ये जो है पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई सिग्नल नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो मसल्स 2 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुई है, फिर बाद में क्या होता है, वो रिलैक्स पोजीशन में आती हैं, और रिलैक्स होते ही वॉल्यूम जो है कैविटी का वो कम हो जाता है, एयर जो है वो फोर्सफुली बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती और इसको कोई सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर हम लोग हमेशा याद रखेंगे, नॉर्मल एक्सपिरेशन में रेस्पिरेटरी सेंटर वर्क करते हैं, एक्सपिरेशन में कोई मैसेज किसी को नहीं जाएगा। दूसरा जो है हमारा एक्सपिरेटरी सेंटर जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के वेंट्रल साइड पे होता है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ मिलेगा आपको, ब्रेन के अंदर। तो ये क्या है, ये किस प्रोसेस को ज़्यादातर कंट्रोल करता है। पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम, जैसे अगर आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो, बैठे हो आराम से, कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपको डीप ब्रेथ की ज़रूरत नहीं है, तो आप जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो तब ये एक्सपिरेटरी सेंटर जो होता है वो इनएक्टिव होता है, और या आप कह सकते हो साइलेंट होता है। लेकिन जैसे ही आप जो है बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हो, या आपको बहुत फोर्सफुली एक्सपिरेशन करना हो है, या फोर्सफुली मतलब क्या करना है, इंस्पायरेशन करना है, तो उस वक्त क्या होता है, तब ये स्टिमुलेट होता है, और इसके स्टिमुलेट होने से जो है मसल्स जो है वो स्टिमुलेट होती हैं, जिसकी वजह से आप फोर्सफुली
जो है ब्रीदिंग करते हो, जिसमें आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है फोर्सफुल करते हो। थर्ड जो सेंटर है वो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और ये मिलता है आपको पोन्स वेरोलाई। तो ये भी ब्रेन में ही मिलता है, और ये कब एक्टिवेट होगा, जब आप एक्टिव होगा, जब एक्सरसाइज करोगे और आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाता है। ये जो सेंटर है ये आपके जो ब्रेथ्स हैं उसके नंबर को बढ़ा देगा, लेकिन जैसे ही नंबर बढ़ता है ना, तो उस वक्त क्या होता है, जो अमाउंट है एयर की, नंबर तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो लंग्स हैं उसमें क्या होता है, एयर इतनी नहीं जाएगी जितनी आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग में जाती है। तो ब्रीदिंग रेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो डेप्थ है ब्रीथ की वो कम हो जाएगी। तो ये जो सेंटर हैं इस तरह से काम करते हैं। दूसरा क्या है हमारा, केमिकल कंट्रोल्स। केमिकल कंट्रोल में क्या होता है कि ये कंट्रोल है, ये आप समझ सकते हो, दैट इज़ ये कीमो सेंसिटिव बॉडी होती है हमारी बॉडी के अंदर, और ये इसको क्या है कंट्रोल करती हैं। तो पहला, ये दो तरह की होती हैं, कैरोटिड बॉडीज़ एंड एरोटिक बॉडीज़। जो कैरोटिड बॉडीज़ हैं ये मिलेंगी आपको बेस ऑफ कैरोटिड साइनस, और एरोटिक बॉडी जो है ये बेस ऑफ अओर्टा, जो सबसे बड़ी हमारी आर्टरी होती है। दोनों ही जो बॉडी हैं, कैरोटिड हो या आर्टिक हो, तो ये काम किस पे करती हैं, ये पूरी की पूरी डिपेंड होती हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो ये केमिकल बॉडीज़ हैं, कीमो सेंसिटिव बॉडीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है, तो दोनों ही जो बॉडीज़ हैं वो स्टिमुलेटेड हो जाती हैं, और इनके स्टिमुलेशन से क्या होता है, जितनी भी एक्सपायरेटरी मसल्स हैं वो भी स्टिमुलेट हो जाती हैं। वे स्टिमुलेट करती हैं एक्सपायरेटरी मसल्स को, और एक्सपायरेटरी मसल्स के स्टिमुलेट होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, जिसकी वजह से फोर्सफुली एक्सपायरेशन होता है, और जो एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर थी वो एक्सहेल्ड हो जाती है फोर्सफुली। तो ये केमिकल कंट्रोल होता है, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने के बाद उसको निकाल देते हैं। और दूसरा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर भी थोड़ी सेंसिटिव होती है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंपैरिजन अगर हम ऑक्सीजन से करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, तो ये बहुत ही कम सेंसिटिव होती है। और अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का घट रहा है तो इसका मीनिंग भी वो यही है कि जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का वो बढ़ रहा है, तब भी फिर क्या होता है कि यही प्रोसेस रिपीट हो जाता है, तो ये ठीक हो जाता है। तो ये था केमिकल कंट्रोल और रेस्पिरेटरी कंट्रोल ऑफ द बॉडी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द सम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स।